Hello? Hello. Yes, sir. Okay, good afternoon, class. Yeah. Okay, so this is uh, this is our third interaction regarding this lab. Clear? So, Yes. okay, so the first experiment I think we have been done. We have been discussed, I think. Okay, so all of you have tried to install that particular software regarding 8085 that was provided into the link section. If you go to the link which I have shared on the Google Classroom, so any one of you have tried to install that or not? Getting my voice? All of you are getting my voice? Yes, sir. Okay, so what I am asking that any one of you have tried to install that particular license software, sorry, that particular 8085 simulator software, that is simulation version 2. So किसी ने उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करी? None of you have tried. Okay, can any one of you access the link which I have provided on the Google Classroom? Yes, sir. The link is opening. The link was opening. Okay, okay. So have you find that particular link regarding the software? Have you find the link regarding the software? Have you find the link? Anyone? No, sir. लिंक नहीं मिला? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. Most of the students have not joined yet. Okay. Most of the students have not joined yet. Okay. Okay, so I'm going to share you the link again through which we can access. Okay, so I'm just trying to share you, just wait. Okay, so I think I have sent you the lab activity also. Clear? I have sent you the lab activity also. Yes, sir. Okay, that's very good. So the link is also provided on lab activity to the near to the each experiments. If you go through the column of that, and you will find the link related to that every experiment. Clear? Either some demonstration or some virtual lab related. Clear? So I'm just trying to open. Just wait. So I am again sharing with the process. If someone have not
yet access the process, so I'm just sharing it again. Okay, so I think it is opened. Okay, so this is the link which I have shared to all of you. This is the link you can see जो हमने आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है? So when we access this link directly, clear, we go through the virtual lab activities, clear, and I'm just trying to access this link again, clear, and on this particular link you will also find the related content, clear. Actually, I have also tried to install that software, but it is exactly creating some issue regarding installation, clear. So whenever I got the I got it is I installed it, then I will share you the process or the link relevant to that, so you all can also install. Otherwise, you can try to install clear, which is provided by the EKTU, and you all need to perform it. Means you have the coding and regarding any experiment, the coding is also provided. So on the virtual lab, so you can directly understand the coding, and when you copy and paste that coding onto the editor window that we have discussed last time. So editor window पे जब आप उसको paste करेंगे, then after compiling the program, I'm sorry, assembling the program, you will get the uh, step by step simulation और step by step running the code, clear. So जब वो run करेंगे step by step या or all at a time, and you will go the result, you will come to the result on the simulation page, clear. So I'm just opening this hyperlink, so just you will see what I was telling. Just wait, it is opening now. तो ये सभी को दिख रहा होगा. Yes, sir. ओके, सो व्हाट यही आपको मैंने शेयर किया था, ठीक है. तो जब आप उसको लिंक को एक्सेस करेंगे और जो मैंने आपको लैब एक्टिविटी शेयर की है, इसमें आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट पे पहुंच जाएंगे. जो भी रिलेटेड लिंक अवेलेबल है, उसको आप क्लिक करेंगे, देन यू विल डायरेक्टली एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, क्लियर. सो तो जैसे मान लीजिए this was the first experiment which we have discussed last time, and this is the second experiment. So today we will talk about the second experiment, clear. So when I access on this experiment, you come to this page, clear. That is the subtraction of two 8-bit numbers, clear, or 16-bit numbers, clear. So तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे हम लोग 8-bit नंबर एंड 16-bit नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. Okay, so is there any doubt regarding subtraction? So I just give you the clarity regarding subtraction with the numerical based question. अगर किसी को डाउट है तो मैं पहले बता दूं उसको सब्ट्रैक्शन क्या होता है 8 बिट एंड 16 बिट का कैसे सॉल्व करते हैं.
Is there any doubt? Can all of you are clear with the subtraction, or anyone have doubt? So I will just make you clear with the numerical if you have doubt. So kindly respond me, or most of you are clear with the particular thing which I am talking about. Hmm? Yes, sir. What? Yes, sir. Miss, doubt is no doubt, or doubt is there. I'm just asking about. Hmm? Okay, so I'm just sharing you a question. एक मिनट में दिखा देता हूँ हमको कैसे वैसे सॉल्व करते हैं. पहले तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन होता है, दो सब्ट्रैक्शन हमें करने हैं, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. क्लियर? तो जो ऑक्टल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है उसमें जो हम बोरो लेते हैं वो 8 लेते हैं. बोरो विल बी 8. क्लियर? क्योंकि वो ऑक्टल है, जो भी बोरो लेंगे वो 8 होगा. उसका बेस आपका 8 जो होता है वही बोरो होता है. ठीक है? हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर्स का, तो बोरो आपको 16 लेना पड़ेगा. ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये आपको विजिबल हो रहा है? शेयरिंग अगेन. तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, देन वी कम टू द प्रोग्रामिंग एंड 8085. क्लियर? सबसे पहले तो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन होता क्या है. सो ऑक्टल नंबर आपको पता है 0 से लेकर 7 तक हमारे ऑक्टल नंबर हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर? एंड इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, ये भी सभी को पता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल देख सकते हैं आप 253 बेस 8 माइनस 167 बेस 8. तो जैसे इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है यूजिंग ऑक्टल ऑक्टल सब्ट्रैक्शन. क्लियर? तो आप देख सकते हैं जो ये हमारे नंबर्स हैं ये सब 8 से कम है, या मतलब 7 या 7 से कम है. आप देख सकते हैं जो भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम या जिससे कर रहे हैं दोनों ही 7 से कम है, या 7 या 7 से कम. क्लियर? सो सपोज वी स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन. तो वी हैव राइट इज एट 253 एंड 167. क्लियर? सो सबसे पहले हम देखेंगे 3 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे, फिर माइनस 3 माइनस 7, 3 इज स्मॉलर देन 7. सो क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें बोरो लेना पड़ेगा. तो वी विल टेक जस्ट बोरो फ्रॉम द नेबरिंग एलिमेंट. तो नेबरिंग एलिमेंट आपका 5 है. 5 से बोरो लिया, तो मैंने बताया था ऑक्टल अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बोरो 8 आएगा. ठीक है? तो हमने 5 से जब एक बोरो निकाला तो इट विल जस्ट गिव अ 8 नंबर टू द नेबरिंग नंबर. तो इसने जब एक बोरो दिया तो 8 हमारा इधर आ गया. ठीक है? और 5 की जगह क्या बचेगा, 4 बचेगा. 5 की जगह क्या बचेगा, 4. क्योंकि 5 में से एक चला गया तो 5 में से 4 केवल बचा, तो 4 रह गया यहाँ पे. और जो एक इसने उधार दिया है, जो बोरो दिया है, वो एक जो है 8 फॉर्म में, क्योंकि हमेशा ऑक्टल का बेस 8 होता है. तो जो भी बोरो आएगा वो 8 फॉर्म में आएगा. ठीक है? नंबर 8. तो यहाँ पे 8 आया. अब 8 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे ये वाले. तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया. 11 में से 7 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 4. तो ये आपका 4 आ गया. तो नाउ इट इज 4. ठीक है? Yes, sir. यहाँ 4 आ गया. ठीक है? क्योंकि अब 8 और 3 जोड़ेंगे 11 हो गया, वो 7 से बड़ा हो गया, तो अब माइनस इजिली हो जाएगा. ठीक है? तो 4 आ गया. अब जो पीछे वाला नंबर था उस पर बात करते हैं. पीछे देखिए 5 से 4 बन चुका है. 4 अगेन 4 से 6 माइनस नहीं हो पाएगा. तो 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से बोरो लाना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है? तो हम फिर पीछे के नंबर पे गए. पीछे आपका 2 है. 2 से इसने बोरो लिया एक ऑक्टल नंबर, तो एक बोरो लिया तो एक 8 इधर आ गया, और 2 कट के 1 हो गया. 2 से एक निकल गया तो 2 1 में कन्वर्ट हो गया ना. एक बोरो 8 इधर आ गया राइट वाले पे, तो 8 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे. 4 क्यों हुआ था 5 से, क्योंकि 5 से एक निकल के राइट साइड गया था, तो वो 4 हो गया था. अब 4 में 8 ऐड हो जाएगा. ठीक है? जो 8 आया है पीछे से, तो 8 और 4 ऐड होके हो गया 12. 12 में से 6 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा. अब इधर देखेंगे ये 1 है,
क्योंकि 2 में से एक निकल चुका है तो यहाँ 1 ही बचा था, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो द रिजल्ट इज 064 विच इज व्हाट, विच इज ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ये आपका रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, तो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 8 की जगह बेस 16 होता है, ये सभी को पता है। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन कर, इसमें 16 होता है तो इसका मतलब हमारा नंबर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 15 तक जाएगा, 0 से लेके 15 तक। 15 के ऊपर जाएंगे तो 16 से ऊपर हो जाएगा नंबर। जो 0 से 15 आपके टोटल 16 नंबर हो गए, तो हेक्साडेसिमल आपका 0 से 15 तक हो गया। 15 के ऊपर 16 हो गया, तो 16 मतलब वो 16 को क्रॉस कर गया, मतलब सॉरी 16 मतलब 0 से 15 को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेस आपका क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो जैसे पिछले वाले में, ऑक्टल वाले में हम लोग बोरो 8 ले रहे थे, यहाँ बोरो 16 आएगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 7b6 एंड 6c5। बी आप लोग को पता है, बी का मतलब हो गया आपका 12 सॉरी 11, और सी का मतलब हो गया 12, क्लियर। So when you perform the subtraction from 7b6 minus 6c5, so you can see 6 minus 5 will be 1. There is no issue over here. इसके बाद b माइनस c करना है, तो b आपका छोटा है c से, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू 12 है, 11 में से 12 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो 11 को हमें पहले ज्यादा बनाना पड़ेगा। ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से एक बोरो लेंगे। तो लेफ्ट वाला 7 है, 7 से एक बोरो लिया तो 7 6 में कन्वर्ट हो गया, और एक बोरो राइट में चला गया, तो बी में 16 बोरो इधर गया ना, तो बेस 16 है, मैंने बताया था जब उधार लेगा तो 16 देगा। तो 16 इसने दे दिया इसको। अब 16 में बी ऐड कर दीजिए, तो 16 और बी की वैल्यू 11 दोनों ऐड करेंगे तो 27 आ गया। अब 27 में से किसको माइनस कर दीजिए, सी को माइनस कर दीजिए। ये जो सी है, सी कितना था, सी 12 था, 12 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, तो एफ। हमने इसको एफ लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब 6 बचा है, 7 से एक निकल गया था, 6 बचा था, 6 से 6 माइनस करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 0f1। दिस इज कॉल्ड द हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया दोनों, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल? यस सर। किसी को सब्ट्रैक्शन में डाउट तो नहीं है? देन वी कम टू द प्रोग्रामिंग। नो सर। Okay, so now we come to the programming part, clear? So now we come to the topic which we were discussing, clear? So again we come to the window that we were discussing. Share कर रहा हूँ मैं window आपको फिर से, एक मिनट, just wait. किसी का माइक म्यूट नहीं है, काइंडली म्यूट योर माइक। Okay, I am getting voice from yours, anyone on side, so kindly mute your mic. Hello. Okay, so someone is creating problem. Hello. All of you are getting my voice. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I am requesting to someone. His mic is not mute, so kindly don't mute yourself if someone is creating some problem in this particular session. Clear? Okay. So family discussion is was also coming during this session. Clear? Still not muted right now. Okay. Okay. So
Okay, so now I'm again starting. There is problems. Okay, so we are now discussing the 8085 based programming for the subtraction of 8-bit number and 16-bit number. So we have अभी हम लोगों ने discuss किया है just now how we can subtract the 8-bit numbers and 16-bit numbers. Clear? And we have shown that how we can take the borrow for both of them. Clear? So this is the aim of this. Now if we come to the introduction page, so you can see this is the introduction regarding 8085 microprocessor. This is same as what? This is same as for the addition also, क्योंकि दोनों में introduction part आपका change नहीं है, तो introduction will be same. You can either take it from the addition part or you can take it to the subtraction part. Clear? Now if we come to the theory, if we come to the theory now, someone is creating problem. Just wait. Okay, so I think someone is not listening to me. Okay, so now I think clear. Okay, so we have some theory regarding this instruction. So you can see we are having some instructions, so which we can follow when we perform the programming of that. Clear? So instructions you can see, especially addition में हम लोग add instruction use करते हैं, subtraction में SUV और SBV instruction use करते हैं. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी. आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है? यस सर, अब क्लियर हुई. Okay, actually some hindrance is there into the communication between me and all of you. Somebody have not muted their mic, and the family discussion is also coming into the session. Clear? So I'm just requesting that if somebody is creating some problems, so kindly mute yourself. Okay. So okay. Anyway, so we start the discussion and let them throw out. Clear? So so we have some theory regarding this. So you can see we have some instructions and which we can follow for the subtraction. Clear? So when you write a program into the 8085 assembly language, clear, on the editor window, so you just need to keep in your mind some instructions. Clear? जो आपको याद होने चाहिए माइंड में, जैसे मूव कराने के लिए क्या क्या कमांड यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मूव इमीडिएट में MVI लगाते हैं. कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम इनटू द माइक्रो प्रोसेसर. इज इट क्लियर? तो इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए. ठीक है. ऐड करते हैं तो ऐड के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, ADD लगाते हैं जैसे, या कुछ और यूज करते हैं, तो ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस याद होने चाहिए. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो SUV यूज करते हैं, SBB यूज करते हैं. ठीक, ऐसे ही जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है देन वी यूज हॉल्ट इंस्ट्रक्शन. क्लियर? एंड उसके अलावा जो है जब मूव कराते हैं तो MVI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. क्लियर? सो सिमिलरली यू नो all the types of instructions. Clear? इसके बाद आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं. ठीक, इसके बाद आपके एक्यूमुलेटर क्या होता है. तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. सम अदर मेमोरी लोकेशन, जंप विथ कैरी क्या होता है, जैसे JNC का मतलब है जंप विथ नो कैरी. क्लियर? सो ऐसे INR क्या होता है, इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, इंक्रीमेंट टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर कंटेंट बाय 1, तो इसको INR बोलते हैं. INX होता है इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर. ठीक है, इट इज जस्ट इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर बाय 1, तो इसको INX बोलते हैं. ठीक, INX H.
फिर SUB आपका सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, STA आपका स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट होता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। MOV मूव कमांड है, MVI मूव इमीडिएट डेटा है, ठीक है। LHLD क्या होता है, लोड HL पेयर डायरेक्ट, ठीक है। LXI क्या है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। ये सब आपको मालूम होने चाहिए। एंड द बॉटम इज द फ्लो डायग्राम टू परफॉर्म द subtraction operation. Clear? So if we come to the now procedure page, if you come to the procedure, then you can find these are the procedure how you can perform the step by step simulation and writing the program into the particular software which is provided. Clear? So what are the procedure? यही मैं आपसे कह रहा था, this was the link. आपको लिंक दिख रहा है सभी को? ये माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर का लिंक दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, सो यही मैं आपसे कह रहा था, दिस प्रोग्रामिंग इज डन ऑन दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर वर्जन 2 एंड जावा। तो ये आपको डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे, ठीक है। काइंडली ट्राई टू डाउनलोड इट। मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हो नहीं रहा है ये। तो जो भी प्रोग्रामिंग है आपको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो then you can easily run this program on your own system. Clear? Is it clear? So अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो you will directly find the interface and you can directly run the program. Clear? Which is provided over here. That is the software is given over here, but it is creating some issue with my system. You all are requested to kindly install it through the link. Clear? So ये आपका लिंक है, that is micro processor simulator and Java. Clear? So kindly try to install it. And then the second part is this: you write the program code on editor file window. So this is the second procedure. Means you need to write the program code on the editor file window, which I have earlier told you कि जो editor page होता है, editor page मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी मैं दिखाऊंगा editor पेज कौन सा होता है, उसी पे उस प्रोग्राम को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वैसा ही कुछ प्लेटफॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो उसमें एडिटर विंडो पे आपको पेस्ट करना है प्रोग्राम, ठीक है, डायरेक्टली। स्टोर सम इनपुट डेटा एट स्पेसिफाइड मेमोरी एरे, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द, उसी में ऑप्शन आता है क्लिक ऑन द असेंबल फॉर सिमुलेशन। जब आप कोडिंग को एडिटर विंडो पे टाइप कर देंगे तो नीचे ऑप्शन आता है कि राइट क्लिक ऑन द ऑप्शन असेंबल फॉर सिमुलेशन। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें मांगेगा राइट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम टू सिमुलेट ऑप्शन। स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा डालेंगे? जैसे मान लिया हम 7000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 7000 पहला एड्रेस है, इनिशियल एड्रेस जहां से हम स्टार्ट, तो हमने 7000 डाल दिया इनिशियल एड्रेस, यही आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट एड्रेस, ठीक है। ये आप डाल दीजिए वहां पे। इसके बाद सिमुलेशन ऑफ एंटायर कोड कुड बी रन एट ए टाइम और स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पूरा का पूरा कोड है आप उसको एक बार में पूरा रन करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेट ऑल एट ए टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। सिमुलेट या रन एट ए टाइम, जब रन एट ए टाइम कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम एक ही बार में रन हो जाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप भी रन करा सकते हैं। Then execution result can be checked through the register, memory and devices environment window. So आप जो सिमुलेटर वाला पेज होता है उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर विंडो, मेमोरी और डिवाइस एनवायरनमेंट। रजिस्टर में आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जैसे टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, वहां पे आपको डेटा दिखाएगा। पहले हमने एक डेटा लिया, उसको हमने किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया, फिर दूसरा डेटा लिया, उसको दूसरी मेमोरी में स्टोर किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो रिजल्ट एक मिला जो कि थर्ड एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे गया। उसको वो सब आपको दिखाएगा, ठीक है, कहाँ पे, रजिस्टर में। मेमोरी में मैंने बताया, मेमोरी में क्या करते हैं, जो भी इनपुट डेटा है उसको स्पेसिफाइड मेमोरी एरे में या लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। बाकी लास्ट में डिवाइस, डिवाइस का क्या काम होता है,
डिवाइस से हम लोग, डिवाइस आपका क्या करता है, जैसे जो भी है जहां प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर इसको किसी दूसरे डिवाइस से इंटरफेस कर देते हैं तो आप उस इंटरफेस करने के बाद उस डिवाइस पे भी रिजल्ट्स को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग एलईडी वगैरह होता है अलग से कनेक्ट करते हैं डिवाइस में, तो एलईडी ब्लिंक करता है तो बता देगा आपका प्रोग्राम, मतलब जो आप यहाँ से कुछ कमांड दिए एलईडी ब्लिंक कर गया, तो उससे पता चल गया आपको कि आपका सिस्टम ऑन हो गया, नहीं तो ऑफ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंटरफेसिंग करके भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट में क्या, 8th पॉइंट क्या, नोट डाउन अपडेटेड रजिस्टर एंड मेमोरी कंटेंट वैल्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक। इसके बाद फॉर इंस्ट्रक्शंस मेमोनिक्स डिटेल्स क्लिक द बेल बटन। तो ये सब आपका एक विंडो, ये वीडियो दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली मेमोनिक्स और कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी कम टू द सिमुलेशन कोड ऑब्लिक रिजल्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज द सिमुलेशन कोड फॉर द सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वी हैव द origin will start with the 7000H, this is the origin place जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। then we have used LXI command, ठीक है। LXI H7501, 7501 is the first address, clear। 7501 क्या है, फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ पे से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास दो डेटा है, एक डेटा से दूसरे डेटा को माइनस करना है। तो हम पहला डेटा सपोज 7501 पे स्टोर कर रहे हैं और दूसरा डेटा हम 7502 पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 7503 पे मिलेगा, क्लियर। तो जैसे मैं तो ये आप प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले क्या किया है, एक नंबर लिया, ठीक है, HL पेयर रजिस्टर में, ठीक है। HL पेयर इज अ जनरल पर्पज रजिस्टर जहां पे आपका पहला नंबर है, ठीक है, एड्रेस आपका पहले नंबर का वहां पे है। तो उसको हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक्यूमुलेटर में डाल दिया, ठीक है। उस नंबर को मैंने कहा स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेटर। तो मूव दैट नंबर इनटू द एक्यूमुलेटर। सो जैसे इसको एक्यूमुलेटर में स्टोर किया, जस्ट 1 मिनट, ये ठीक है। Sir, voice is not audible. सर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं अभी शायद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब नो आ सर। गई नाउ आई सर। एम ऑडिबल, Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें प्रोग्रामिंग में कि एक हमारे पास नंबर है जो कि एक रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है, एड्रेस उसका क्या है 7501, और हमारा जो बेस एड्रेस है वो 7000 है। ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन एड्रेस है। जो मैंने बात किया था ना कि हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस डालते हैं सिमुलेट कराते वक्त, तो स्टार्टिंग एड्रेस 7000 है। तो हम जब रन कराएंगे तो 7000 इसको बेसिक एड्रेस मान के चलेंगे। जो पहला वाला डेटा है हमारा वो 7501 पे है। तो 7501 पे एक डेटा है, जैसे दो डेटा होंगे ना, एक में से दूसरे को माइनस कर रहे हो, तो पहला वाला डेटा हमने एक HL जनरल पेयर रजिस्टर में स्टोर किया है जो कि मेमोरी लोकेशन है, इसको M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस डेटा को सबसे पहले हमने मूव करा दिया एक्यूमुलेटर में। कहा मूव कराया? एक्यूमुलेटर में। कहने का मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको थोड़ा इसमें लिख के बताता हूं।
शायद आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे एक एक्यूमुलेटर है हमारे पास, एक्यूमुलेटर ए में से हम एक डेटा माइनस कर रहे हैं m का, तो रिजल्ट हमारा कहां जाएगा? देखिए a माइनस m जब हमने किया तो वी गॉट द रिजल्ट, हमें करना है, ठीक है, जो हमें रिजल्ट मिल गया गो टू द एक्यूमुलेटर। तो यही काम हमको करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है जो कि हमने मेमोरी में है, मेमोरी का एड्रेस आपका 7501 है, ठीक है। तो 7501 का जो डेटा है इसी को हम HL जनरल पेयर रजिस्टर भी बोल रहे हैं। यहाँ से हमने डेटा उठा के मूव करा के एक्यूमुलेटर में डाल दिया, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में हमारे पास डेटा है सपोज, क्लियर। अब एक HL पेयर जनरल रजिस्टर आपका खाली हो गया, क्योंकि जो HL पेयर था जो कि जिसको मैं मेमोरी बोल रहा हूँ, तो जब पहला वाला डेटा मेमोरी से हमने जब एक्यूमुलेटर में डाल दिया तो अब मेमोरी खाली हो गई। अब मेमोरी हम दूसरा डाटा डालेंगे, मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। नाउ द सेकंड डेटा इज अगेन इनटू द मेमोरी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक डेटा मेमोरी में आ गया और एक डेटा एक्यूमुलेटर में रह गया जो पहले वाला था। अब हम क्या करेंगे? अब कमांड देंगे सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, वही सेम वर्क हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब आपको दिखेगा कि एक डेटा हमारे पास था, देखिए ये वी हैव ए डेटा जो कि HL पेयर रजिस्टर में था, उसको हमने पहले मूव कराया एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में मूव कराने के बाद हमारा एम मेमोरी खाली हो गया। तो मेमोरी में जो HL रजिस्टर है वो अब 7502 एड्रेस को पॉइंट करेगा। 7502 मींस सेकेंड एड्रेस को, जहाँ सेकेंड डेटा है, ठीक। जब उसको वो मिल गया तो वो वहां पे स्टोर हो गया सेकेंड एड्रेस पे। अब हमने कमांड दे दिया SBBM। SBB इज व्हाट? फॉर सब्ट्रैक्ट, क्लियर। जनरली SUB भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। SUB हम लोग अभी बताएंगे कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ SBB हमने यूज किया, तो SBB करके क्या किया, इसका कमांड का मतलब है सब्ट्रैक्ट सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो पहले एक नंबर हमारे पास एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है, एक नंबर हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर में या मेमोरी में स्टोर्ड है। तो A माइनस M हो जाएगा। देन जो रिजल्ट आएगा वो फिर से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगा। वो मेमोरी लोकेशन सपोज क्या है, 7503 एड्रेस पे है, तो वहां ये स्टोर्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी डेटा हमारा मेमोरी लोकेशन पे है, अब इसको हमें एक्यूमुलेटर में मूव कराना है, क्योंकि फाइनली हमारा, ठीक है, हमें मान लीजिए उसको मूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, मूव M कॉमा A कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है। ये जो ये 7503 है, यहाँ पे हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। A माइनस M किया तो A में स्टोर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसको फिर से मेमोरी में मूव कराएंगे। तो मूव M कॉमा A कर देंगे। मूव M कॉमा A का मतलब है नाउ द एक्यूमुलेटर डेटा विल बी मूव टू द मेमोरी लोकेशन। तो मूव ए कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी एंड देन लास्ट में टर्मिनेट द प्रोग्राम, क्लियर। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन इज गोइंग टू आई थिंक एंड, so you all are requested to rejoin again so that I can complete this, clear? Hello? ओके सर। ओके सर।